GSCS एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस 2026 का सफल आयोजन 28 मार्च को वेलकम होटल बाय ITC NH8 में हुआ, जहां कॉर्पोरेट जगत, उद्योग विशेषज्ञों और इनोवेटर्स ने एक मंच पर आकर AI, मास ट्रांजिट, रिस्क एवं सिक्योरिटी और GCCS जैसे अहम विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम में अमित अग्रवाल की उपस्थिति रही और प्रदर्शनी वह नेटवर्किंग के जरिए प्रतिभागियों को नई तकनीकों, विचारों और व्यावसायिक अवसरों की जानकारी मिली। सर आप फ्रंट करो। And offer the products which are actually required by the customers. The designs what we make is actually propelled by innovation. As I have already mentioned, medical is carpets actually is vegetables and the textiles. So that kind of an innovation we bring to the customers and which definitely enhances the product beauty, sustainability and the functionality of the vehicles. We deliver essential performance to the customers we offer. There are several services that we are there. The design services, starting from the inception of the project, like where the new from our partner Medical, and can I have this? Right. Good evening. My name is Ashish and I am representing Milliken and Company today. As I am not going to give you the tricks and how to start to be short and best. About Milliken and Company, it's a very diversified US based industrial man. We have just 160 years of experience. We are driven by innovation and manufacturing excellence. What are the different verticals that Milliken operates in? We are there into textiles, which is there in the apparel, automotive, transportation and defense. In the chemicals, we are there into plastic additives, agriculture, consumer goods and coloring. Apart from that, we are into the flooring. In the healthcare, we are into the food and apart from this, Milliken as an organization has already 5,000 next explains to medical floor company. We have a very rich and history of delivering solutions to our customers. Over 5 decades of experience and clubbing are award-winning. We offer the products which serve the purpose for the end customers. In terms to curiosity, for the channel partners, in terms to the architects and the designers, what the designs we can offer in terms of the customization. In case if we are looking for some color options, we can do the color options also for our customers. In terms to the product performance, definitely our designs are there so that our products perform in terms of the comfort, acoustics and sustainability aspects. The reclamation program that we have, what happens to the carpets once their life is over, that is around 10 to 12 years. We have a term for the carpets, that is how those carpets can be reused. So on this slide I would like to draw your attention. If you see on the slide, the right hand side 3 images. One would be thinking that this is a roll carpet that we currently are using in this whole board. But no, this is not a roll carpet. This is a customized carpet type and done by Milliken for one of the Indian companies out here in India. On the top, on the bottom left hand corner, the constellation image that we see, it was played by one of the customers in Mumbai and given to Milliken as a challenge. Can you develop this on the carpet type? This is a carpet type on the left hand side of the screen, bottom bar, which has almost 586 colors coming in that particular type, one by one. So this is the capability what Milliken can deliver in terms of the customizations to our customers. So Milliken floor covering majorly. सेल के लिए है, सेल के लिए।
restricted as well. How many trails do you have as of now? सर, आज जिस तरीके से जो सेमिनार लगा है, लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो जर्नी है, ठीक है सर, आप किस तरीके से देखते हैं इसमें जुड़े हुए जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा ही एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और हमारे लिए बड़ी एक प्राउड फीलिंग है कि हमने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च भी किया है। सो वी हैव ऑफिशियली लॉन्च जस्ट क्योर एट GSCS और हमने MOU भी साइन किया है। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं GSCS की कमेटी का कि हम उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है एंड टू गेट इनटू MOU विद देम, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को बेसिकली जो हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो एक अम्ब्रेला एम्प्लॉयज़ को या लास्ट माइल तक प्रोवाइड कराना चाहते हैं, वो GSCS के थ्रू हमारा वो सपना पूरा हो पाएगा। GSCS का जो प्लेटफॉर्म है उसको आप अपने बिजनेस के तौर पर किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यहाँ एक तरफ अलग अलग इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जुड़े हैं, जॉब तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, लेकिन आप एज ए बिजनेसमैन किस तरीके से देखते हैं इस प्लेटफॉर्म? देखिए, एज अ बिजनेसमैन वो दिन अब चले गए हैं जहाँ पे हम सिर्फ बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए करते थे। आज की डेट में सर्विस टू पीपल, फैसिलिटीज़ टू एम्प्लॉयज़, वो उसका ज़माना है। पहले ये चीज़ आती है। आजकल हम ESG की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम ESG में S में सोशल की बात करते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि बिजनेसमैन सोसाइटी को क्या दे रहा है इस पर्सपेक्ट से भी देखे। उस चीज़ में GSCS एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और हमें वो प्लेटफॉर्म देती है कि एज अ बिजनेसमैन हमें वो सेटिस्फैक्शन मिले कि हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं। सो दैट वेज वी आर वेरी थैंकफुल फॉर GSCS। सर, अपना नाम बताएं। Myself Jay Kumar Arora, I am director at Just Procure and आज का प्रोग्राम तो बड़ा सही रहा था। अगर बात की जाए GSCS पे क्या आपको खास लगा? सो यहाँ पे जिस तरह से इंटरेक्शंस हमारे हुए हैं सारे लोगों के, सभी तरह के लोग यहाँ पर आए थे और सबने काफ़ी इंटरेस्टिंगली हमसे वार्तालाप की है और सबसे जिस तरह की बात हुई है, सबने अपना भी ओपिनियन दिया है, ना कि सिर्फ हमारी जो बिजनेस आइडिया है उसको समझा है, बट अपनी तरफ से काफ़ी सारे अच्छे फीडबैक भी हमें दिए हैं जो इवेंचुअली हमें हमारा बिजनेस ग्रो करने में काम आते हैं। अपना नाम? जतिन लूथरा, मैं GSCS के इंडिया सेक्रेटेरिएट को हेड करता हूँ। आज का जो हमारा ये आयोजन है, इस पे हमने जो फोकस किया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कैसे टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रही है हमारे प्रयासों को टूवर्ड्स द सिक्योरिटी, द रिस्क ऑफ आवर पीपल, उनको कैसे हम सेफ्टी दे सकते हैं। दूसरा, हमारा एक मंथन हुआ है जिस तरीके से अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, उसमें कॉर्पोरेट किस लेवल पे जाके हेल्प कर सकता है ताकि उनके एम्प्लॉयज़ जो फॉरेन ट्रैवल्स में जाते हैं, सब कुछ अलग अलग देशों में जाके ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे अब सेफ्टी और उनको प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपने सुरक्षित रहें। और इसके अलावा जो हमारे अभी एक प्रॉब्लम चल रही है गैस की जो आ रहा है, उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा करी गई। हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से आए, मिनिस्ट्री से आए, जिन्होंने आके ये बताया कि किस तरीके से छोटे छोटे कदम उठाकर हम लोग इन चैलेंजेस से बच सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम कपिल खेरा है, मैं डायरेक्टर हूँ GSCS एसोसिएशन का। आज का हमारा उद्देश्य इस एग्जीबिशन कम कॉन्क्लेव को करने का दो रीज़न थे। एक तो जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके का इम्पैक्ट बिजनेसेस के ऊपर पड़ रहा है, उसके कई रास्ते ऐसे हैं जो आम जनता और बाकी लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। हमारा उद्देश्य था कि राइट लोगों की तरफ से ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए कि अपनी सतर्कता से हम लोग अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। और आज जिन इंडस्ट्री के लोग हमारे पास आकर के बात करके गए हैं, उससे ये लगता है कि जिस तरीके से भारत का स्टैंड रहा है इस पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, हम लोग इसको आराम से निकाल लेंगे। कोविड के दौरान अनप्रिपेयर्ड था, नाउ मोदी जी का एक जो विजन आया है, उस विजन से हमें लग रहा है कि जितनी कठिनाइयाँ देखी जा रही हैं उतनी नहीं है, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बट वी विल बी एबल टू ओवरकम ऑल दोज इश्यूज।
अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आए। सबसे ज़्यादा अगर बात करी जाए क्योंकि जॉब को लेकर सबके अंदर टेंशन रहती है, वर्क फ्रॉम होम कोविड में हुआ था, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी LPG को लेकर किल्लत हो रही है, पेट्रोल डीजल को किल्लत हो रही है, क्या वर्क फ्रॉम होम एक बार फिर से सिचुएशन क्रिएट होगी जो लॉकडाउन के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतित है लोग? सो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए हैं और मुझे लगता है जिस तरीके से गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस अब वर्ल्ड वाइड लेवल पे आने लगी है, जिस तरह से हमारे जयशंकर जी ने बताया है कि वो बाकी वर्ल्ड लीडर्स से टच में है और उनसे हर चीज़ के ऊपर बातचीत चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इतनी वर्स्ट सिचुएशन इतनी जल्दी आएगी और हम इसको आराम से निकाल जाएंगे। बड़ा बहुत डिसीजन है, टाइम टू टाइम जो है, और ये सारी चीज़ें जो है एक के बाद एक चल रही है। हमारे साल में 2 दिल्ली NCR में 2 बेसिक जो चीज़ें जो होती है वो होती है एक नॉलेज कॉन्क्लेव। इस बारी हमने जो है एग्जीबिशन भी हमने ऐड किया हुआ है। एग्जीबिशन में क्या है, अगर आप ये पूरे घूम के देखोगे, कम से कम हमारे पास 10-12 ऐसे एग्जीबिटर है जो सिक्योरिटी पे रखते हैं, जो फैसिलिटीज़ पे रखते हैं, जो टेक्नोलॉजी पे रखते हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, ये सारे जो है ये हमारे सप्लायर्स हैं और ये हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो भी हमारे को सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल जो जर्नी है एक लर्निंग जर्नी है ये, जो हम चाहते हैं कि भी एक होता है कि भी जो लीडरशिप आज के लेवल में पहुंच गए हैं तो उसके बाद क्या करें। तो हम ये सोचते हैं कि जो नई पीढ़ी जो आ रही है उसको सिखाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए एक तरह का जो सीनियर लीडरशिप मार्गदर्शन का काम कर रही है और वो आगे के आगे जो है लोगों को सपोर्ट करती है जो हमारे फैसिलिटीज़ में काम करती है। को बहुत मेरी तरफ से, मैं कुंवर किशोर अरोरा GACS का एडवाइज़र और मेंटर हूँ, तो मेरी तरफ से सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो इस समय देश में जो स्थिति है, सबको थोड़ी सी परेशानी है कि गैस का क्या होगा, कुकिंग गैस का, तेल का क्या होगा, सबको अपने ऑफिस जाना है, पेट्रोल की ज़रूरत हो सकती है। ट्रांसपोर्ट वाले लोगों को दिक्कत है बिकॉज उनको लगता है कि डीजल उनको नहीं मिल पाएगा और कंपनियां इस समय बहुत परेशान हैं कि आगे चल के ये जो इस समय स्थिति बनी हुई है, जो खाड़ी में युद्ध चली हुई है, उसमें से हम कैसे निकल के आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, देश में आप लोगों ने सब देखा, देशवासियों ने और गवर्नमेंट ने मिलके कोविड से किस तरह से आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस का जो मंत्र बनाया था, उसका हम अब रिप्ले ऑफ 2.0 देख रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट ने ये जो तकलीफ हमें कोविड के टाइम पे थी, इस बार गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कई गुना उससे ज़्यादा तेज़ है। और हमने देखा है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन GACS किस तरह से इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं बहुत क्लोजली। हमारे पास ऑब्वियसली कॉर्पोरेट्स का बहुत बड़ा एक रिश्ता है, 2,500-3,000 कॉर्पोरेट्स के लोग ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। इस फंक्शन में इस समय करीबन 450 लोग रजिस्टर किए हैं, जो शायद 250-300 कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जी लंबा चलता है जी, और अगर क्राइसिस होती है इससे क्या स्ट्रेटजी रहेगी गवर्नमेंट से बाहर लोगों को, और एथनॉल का भी बात कहा जा रहा है आजकल, जी, वो कितना सब्सिट्यूट रहेगा। तो लेट मी टेल यू कि वी हैव सीन that crisis is likely to continue, and if it continues for a very long period of time, how will we sustain it? So government has already made the announcement of Gobar gas is one of the initiatives. Government has also made the announcement that we are trying to ensure that our LPG and oil comes through the Strait of Hormuz. We have also ensured that the citizens are faced with the least amount of difficulty as compared to the industry. The government is also now working very closely to ensure that the industry doesn't shut down. And my own sense tells me
that while the war may finish sooner than later, I think the government is prepared that even if the war was to go on for a long period of time, I think the citizens of India are very well taken care of. I don't think we need to worry, especially because this government is exceedingly proactive, and I think we have a great opportunity to find a way to work with the government at our individual level to make sure that we don't waste LPG, we don't waste oil, petrol or diesel, and we try and find ways to conserve as much as we can. So as citizens, we can afford to do that while expecting that the government will do what the government needs to do. So I think that's a very important aspect that we as citizens, as corporate citizens, as companies, we need to ensure that we play our part and have faith that the government is doing what it's doing. GSES being a not-for-profit is ensuring that we are working closely with the corporates, taking the message that the corporates and their employees are sharing to the government, and vice versa. The government is also listening to what we have to say, like the government is listening to many such bodies like us in trying to get inputs, in making sure that we are all in a far better place. When I look at the rest of the world, let me tell you,